Hello students, welcome to your English class. Today we are starting a new chapter from book Vistas, lesson number 3, that is Should Wizard Hit Mommy? Mommy word means mother, mummy, right? This story is written by John Updike. It's very easy to remember this name, John Updike, right? So it is a very interesting story, believe me. All you have to do is listen to me very carefully and watch the video with full attention so that at once you are all clear with the concept, the theme, everything related to this story. Okay. Now, the story revolves around two characters. One is J.O. Joe and the other one is J-A-C-K, Jack, right? So this Joe is the daughter, a little girl, and this Jack is the father of this little girl. So the story mainly revolves around these two characters, right? So this daughter and this father, they have a tradition from years that every night this little girl wants to listen to a story from the father. Every night. This father every night narrates a story to her daughter. So it has been around 2 to 3 years that he has been doing all this, and now this is the time that his stories are finished. He doesn't get any idea of making a new story. So every time when he narrates a story, every time he narrates a new story to her daughter, but every time this story has a character named Roger, and this Roger is an animal. Every time this father tells a story to the daughter, every time there is some of the other animal in the story, and the name of that animal is Roger. Okay, so this character Roger gets into trouble. See, I'm telling you that this character, this trouble, all this situation is created by this father Jack in every story. Every time he narrates a story, he doesn't get a new idea, then he manipulates the previous one and then he makes a new one, right? So this character Roger gets into trouble. When he gets into the trouble, he goes to a wise owl. This wise owl sends him to a wizard every time. In every story, this wizard asks for the pennies to solve the problem, and he also tells from where to get those pennies. So this is a very simple situation created by father, that this Roger gets into trouble, goes to a wise owl. This owl sends him to a wizard. Wizard asks for pennies, and from where the Roger is going to get the pennies, and the story gets resolved. Now this time, this daughter Joe had heard about a new animal, a character, a new animal, a new creature whose name is Skunk. Okay. Now this skunk is a very stinky animal. He's a very stinky. Stinky means smelly, बदबूदार. ये एक ऐसा एनिमल है जिसमें से हमेशा ही स्मेल आती है, बदबू आती है. ऐसी बदबू आती है जो जनरली लोगों को पसंद नहीं है. Okay. So this skunk, this Roger skunk, he is very, very, very depressed that no friends. He has got no friends. Nobody is ready to play with him because of this smell. So now as Jack का स्टोरी में क्या होता है, रॉजर एक ट्रबल में फंस जाता है. तो अब ये रॉजर स्कंक की ट्रबल क्या है कि इसमें से स्मेल आती है, बदबू आती है, राइट? अब जब इसमें से बदबू आ रही है तो ये किसके पास जा रहा है? वाइज आउल. वाइज आउल उसको किसके पास भेजता है? विजार्ड.
तो अब ये स्टोरी एवरी टाइम क्योंकि सेम रहती है तो इस बार भी सेम है जैक के पास स्टोरी. सो दिस रॉजर स्कंक गेट्स इनटू द ट्रबल दैट ही स्टिंक्स अ लॉट. He goes to the wise owl. This wise owl sends him to a wizard, and wizard asks for 7 pennies to solve the problem. Roger Skunk goes to wizard and he tells him कि मुझ में से बहुत बदबू आती है, मेरे साथ कोई दोस्त नहीं खेलता, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, प्लीज मेरी स्मेल को चेंज कर दीजिए, इसको फ्रेग्रेंस में चेंज कर दीजिए. Are you listening to the word I'm saying? Fragrance, which means खुशबू, right? So he tells कि मेरी stink को फ्रेग्रेंस में चेंज कर दीजिए so that all my friends should come back to me. ऐसा कुछ करिए that they should come back to me. Wizard tells him मैं 7 pennies लूंगा. Then he tells that I just have 3. तो वो कहता है बाहर एक मैजिकल वेल है, तुम वेल के पास जाके अच्छे से प्रे करोगे तो तुम्हें बाकी की 4 pennies वहां से मिल जाएंगे. राइट तो अब ये रॉजर स्कंक पूरी 7 pennies पूरी करता है, विजार्ड को जाके देता है, विजार्ड इसकी प्रॉब्लम को मैजिक करके सॉल्व कर देता है. एंड नाउ दिस रॉजर स्कंक इज सुपर हैप्पी. Now he is happily, merrily going around, walking, singing, and he is very happy that his friends have come back to him. So he is very excited to tell all this to his mother. Now he goes to the house and tells everything to the mother, but mother tells him, ये बदबू कहाँ से लाए हो तुम? कितनी गंदी स्मेल आ रही है तुम में से? तो वो कहता है नहीं मम्मी, मुझ में से खुशबू आ रही है, सब फ्रेंड्स मेरे साथ खेलने लगे, वो मेरे साथ नहीं खेलते थे क्योंकि मुझ में से स्मेल आती थी. बट मदर गेट्स वेरी एंग्री एंड शी सेज किसने किया तुम्हें ऐसा? आई वॉन्ट माई रॉजर स्कंक बैक, आई वॉन्ट माई प्रीवियस स्कंक बैक. तो वो बताता है कि मैं वाइज आउल के पास गया था, वाइज आउल ने विजार्ड के पास भेजा, विजार्ड ने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया. देन दिस angry mother takes an umbrella with her and she goes to that wizard. और विजार्ड को बहुत डांटती है, तुमने क्या किया मेरे बेटे के साथ, कितना गंदा बदबू दे दिया उसको, उसकी पुरानी स्मेल वापस करो. और अपने अम्ब्रेला से विजार्ड के हेड पे हार्ड हिट करती है, मारती है. ओके नाउ दिस विजार्ड he gives him the bad smell again. फिर वो स्कंक बहुत परेशान है, कोई नहीं खेल रहा है मेरे साथ, मेरे फ्रेंड्स फिर वापस चले गए, मम्मी ये आपने क्या कर दिया, सारे फ्रेंड्स वापस चले गए. बट मदर सेज नो, यू आर माई ओरिजिनल स्कंक बेबी. वो कहाँ से गंदी स्मेल आई थी हमें पता नहीं, तुम ही हो, ऐसे ही हैं हम लोग स्कंक. राइट नाउ जो इज लिसनिंग टू ऑल दिस वेरी केयरफुली. अब जो को प्रॉब्लम है, पापा यू प्रॉमिस मी व्हेन tomorrow you are going to narrate a story, you will definitely change it into a happy ending. ये हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, रॉजर स्कंक फिर रोता रह गया. तो कल आप मुझे फिर से ये स्टोरी सुनाओगे और इस स्टोरी में आप रॉजर स्कंक को हैप्पीली एंड कराओगे. और विजार्ड को मारा था मम्मी ने, अब उस विजार्ड को मम्मी को मारना चाहिए, ऐसी स्टोरी आप सुनाएंगे मुझे. फादर गेट्स सुपर एंग्री. ही सेज मेरा दिमाग नहीं खराब करो, मैंने तुम्हें स्टोरी सुना दिया है, मुझे जाके तुम्हारी मम्मी को हेल्प भी करना है. दिस मदर इज पेंटिंग अ रूम, सो दिस फादर हैज टू गो एंड हेल्प द मदर. एंड तुम मेरे को परेशान मत करो, तुम्हें मैंने स्टोरी सुना दिया, नाउ यू गो ऑफ टू स्लीप. नो, आई वॉन्ट अ हैप्पी एंडिंग स्टोरी पापा. यू शुड टेल a new story to me tomorrow and you should change all this and it should have a happy ending and wizard should hit back mommy. तभी स्टोरी का नाम बना should wizard hit mommy. क्या विजार्ड को मम्मी को मारना चाहिए? तो अब जो के माइंड में इतना प्रेशर है, these mamas are bad, mama should not hit wizard, mama should not do anything like this, mama should think about the child. तो क्या पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में सोचते नहीं हैं? बिल्कुल सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं. बट डेफिनेटली
whenever we tell or whenever we narrate a story to a small child और उसका क्या moral होने वाला है, उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है बच्चे के दिमाग पे, ये सब बहुत सोच समझ के हमें सुनानी चाहिए स्टोरी, because children are very curious. उनको बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं और उनको उन सबको सोल्यूशन चाहिए, आंसर्स चाहिए, और उनको डेफिनेटली जो उनके पेयर ग्रुप, उनके एज ग्रुप का अगर कोई कैरेक्टर है स्टोरी में तो वो हैप्पी चाहिए, वो उसको सैड नहीं देख सकते। तो जब भी हम एक स्टोरी सुनाएं, हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि उस स्टोरी का बच्चे के दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैक ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, जैक ने जस्ट स्टोरी सुना दी बिकॉज ही इज बीन डूइंग इट एवरी डे, उसके लिए तो एक रोज का काम बन गया था। बट वो स्टोरी ने क्या इफेक्ट छोड़ा जो के माइंड में, जो को ऐसा लगता है सारी मम्मी गलत होती हैं, मम्मी को विजार्ड से पिटाई खानी ही पड़ेगी। बट जैक गॉट एंग्री. Now he said, I am not going to change the story. Now you have to sleep like this only. And let the story be whatever means it is. आप स्टोरी है वो स्टोरी को ऐसे ही रहने दीजिए. So this is all about should Bizarre hit mommy. इंटरेस्टिंग है ना, छोटी सी है, बहुत क्यूट सी स्टोरी है, बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज छोड़ती है कि हम कुछ भी स्टोरी अगर बच्चे को सुना रहे हैं तो सोच समझ के फ्रेम करनी चाहिए, बिकॉज बच्चा क्या सवाल करेगा उसमें से, किसका हमें जवाब देना पड़ेगा और उसके दिमाग पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मायने रखता है, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, उनको भी ये स्टोरी सुननी है, इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारे सिलेबस में है, राइट। एंड अगर कोई प्रॉब्लम है तो डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर टुडे।